میرے نزدیک سرور کائنات کا مطلب آل مائٹی گاڈ ہے، انگلش میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں اگر اس کی، اور لارڈ آف یونیورس کہہ سکتے ہیں اس کو، اور لارڈز آف لارڈز، جس کے پاس کل کائنات کا اختیار ہو، اس کو ہم سرور کائنات کا لفظ جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ فٹ بیٹھتے ہیں. رائٹ، بہن نے بہت اچھا اس کا مطلب بتایا ہے کہ وہ جو کائنات کا مالک ہے، جو اس کائنات کو خلق کرنے والا اور اس کائنات پر گورنر کرنے والا، یعنی وہ اس پر راج کرنے والا، اس کا مالک، اس کے لیے یہ لفظ سوٹبل ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کیا یہ لوگ جو لفظ اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنے نبی یا دیوتاؤں کے ساتھ لگاتے ہیں، کیا وہ یہ لفظ کے قابل بھی ہیں کہ نہیں؟ وہ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سرور کائنات اگر لفظ سوٹبل ہے تو صرف زندہ قادر مطلق یسوع مسیح کے لیے ہے، کیونکہ وہ اس لائق ہے کہ یہ لفظ اس کے ساتھ استعمال کیا جائے. ہم ذرا بائبل کی روشنی میں دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ بہن شاہدہ بیٹھی ہیں، وہ یسایہ نبی کے صحیفے میں سے دیکھیں گی. یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 9واں باب اور اس کی 6ٹھی اور 7ویں آیت تو بہن ہمارے ساتھ پڑھے گی. اس لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مبشر، خدائی، قادر، ابدیت کا بادشاہ، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. رب الفاج کی غیوری یہ کرے گی. شکریہ بہن. ابھی دیکھیں بہن نے ہمارے ساتھ مل کر پڑھا ہے. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. لڑکا تولد ہوتا ہے اور بیٹا بخشا گیا ہے. بیٹا ہمیں عطا کیا گیا ہے، ہمارے گناہوں کے لیے ہم کو کیا کیا گیا ہے؟ بخشا گیا ہے. ہمیں خدا نے دے دیا ہے کہ سیمول یہ آج سے 2000 سال پہلے اس نے مقدسہ مریم کی گود میں اس کے باطن میں اس کو ڈالا کہ لے یہ بیٹا لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے میں تجھے دیتا ہوں، بخشتا ہوں، تاکہ یہ سارے جہان کے گناہوں کو کیا کر دے؟ معاف کر دے، سارے لوگوں کے گناہوں کو دھو دے، پاک اور صاف کر دی. اس لیے ایک بیٹا ہم کو کیا دیا گیا ہے؟ بخشا گیا ہے. یسوع مسیح بیٹے کی صورت میں آج سے 2000 سال پہلے مقدسہ مریم کو بخشا گیا تاکہ ہماری خاطر وہ کیا کر سکے؟ فدیہ دے سکے، ہماری خاطر جان دے سکے، اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ پیدائشی، وہ ماں کے باطن ہی سے بادشاہ ہوگا، وہ ماں کے باطن ہی سے بادشاہی لے کے پیدا ہوگا. کہاں ہوگی سلطنت؟ اس کے کاندھے پر ہوگی. اسے کوئی لڑائی یا جھگڑا نہیں کرنا پڑے گا، اس کو کسی سے سلطنت چھیننی نہیں پڑے گی، نہ ہی کسی سے لینی پڑے گی، بلکہ کل کائنات کا، کل بادشاہوں کا بادشاہ، سلطنتوں کا مالک ابن داؤد آج سے 2000 سال پہلے. بلکہ اس کے لیے میں یہاں یہ لفظ استعمال کروں گا کہ سرور کائنات آج سے 2000 سال پہلے مقدسہ مریم کے وسیلے سے اس دنیا کے اندر پیدا ہو، کیونکہ سلطنت اس کے. میں نے پہلے جیسے بتایا ہے، ہماری عزیز بہن نے بھی بتایا ہے کہ وہ جو کائنات کا مالک ہوگا. اب یسوع مسیح نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے. دنیا کے جتنے بھی نبی آئے، پیغمبر آئے، جتنے بھی دیوی دیوتا آئے، وہ اس دنیا سے آج سے کوئی 2000 سال پہلے، 4000 سال پہلے، کسی نے 5000 سال پہلے اس دنیا کے اندر آئے، مر گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے. آج ان کی قبریں بھی نہیں ملتی. اگر قبریں ملتی ہیں تو ان کے اندر ہڈیوں کا ڈھانچے ملتے ہیں. وہ
इसलिए सरवरे कायनात नहीं हो सकते, क्योंकि वो मौत और कब्र पर गालिब नहीं है। मौत और कब्र पर जो गालिब आया है वही सरवरे कायनात हो सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने ललकार का कहा था, ऐ मौत तेरा डंग कहां रहा। उसने मौत पर क्या पाई? फतह पाई। आज पूरी दुनिया देख ले, लाखों करोड़ों लोग इस ग्लोरी चैनल के वसीले से, दूसरे चैनलों के वसीले से, वीडियो फिल्मों से और दूसरी बहुत सारी डॉक्यूमेंट फिल्मों से देख रहे हैं कि यीशु मसीह की कब्र आज क्या है? खाली है। इसका मतलब यह है कि वो सरवरे कायनात था, कायनात का मालिक था, मौत का मालिक था। इसलिए उसने मौत को भी तीसरे दिन क्या कर दिया? मांत दे दिया, चकमा दे दिया। इसलिए कि वो सरवरे कायनात था। उसने साबित कर दिया भाई सरवरे कायनात के मतलब जिसके इख्तियारात में सब कुछ है, जिसके हाथ में सब कुछ है, आसमान और जमीन की कुंजियां जिसके हाथ के अंदर, वो तजल्ली है, नूर की तजल्ली वो है। नूर वो उसको ओढ़े हुए है, बल्कि मकाशवा की किताब के अंदर लिखा है कि वो कैसा है? सूरज की मानद है उसका चेहरा, देखता हुआ है। आप जानते हैं कि एक दफा बनी इस्राइल ने कहा था कि हम तेरे खुदा को, मूसा को कहा कि हम तेरे खुदा को क्या करना चाहते हैं? देखना चाहते हैं। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने जब लोगों को खुदा से आकर बात की तो खुदा ने कहा तो लोगों को क्या कर, तू जमा कर और इस पहाड़ के इतने दूर वो खड़े हो जाए। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये कहती कि जैसे ही खुदा का अबर उस जगह आया और बादल गरजे, वो लोग इतने डर गए कि बाइबल मुकद्दस ये कहती है, कलाम मुकद्दस में ये लिखा हुआ है कि वो इतने खौफ से कांप उठे, कहने लगे कि मूसा बस हम खुदा का जलाल बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन हम खुदा उनका शुक्र करते हैं कि वही खुदा मसीह की सूरत के अंदर इब्ने मरियम के हां आज से 2000 साल पैदा हुआ, क्योंकि उसका जलाल कोई देख नहीं सकता था। इसलिए क्योंकि वो सरवरे कायनात है। उसने साबित करके दिखाया कि मैं सरवरे कायनात हूं, यानी जो चाहे वो कर सकता है। आपको मैं एक कहानी बताना चाहता हूं जिसने उसने साबित कर, बल्कि पूरी बाइबल पढ़ी हुई है। आज पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग चैनलों पे आकर पर्सनली गवाहियां दे रहे हैं कि मेरी जिंदगी में यीशु मसीह ने यह काम किया है। हमारे साथ हमारे भाई हैं, अभी उन्होंने बताया कि उसकी जिंदगी के अंदर भी यीशु मसीह ने काम किया, उनकी जिंदगी को भी यीशु मसीह ने बदला है। क्योंकि कोई शख्स किसी की जिंदगी को बदल नहीं सकता, क्योंकि दिलों और गुर्दों को जांचने वाला और दिलों को बदलने वाला सिर्फ यीशु मसीह है, क्योंकि वो सरवरे कायनात है। उसके हाथ में पूरी कायनात है। वो जब चाहे जिसको जहां चाहे जिस तरफ मोड़ सकता है, क्योंकि वो सरवरे कायनात है। वो सरवरे कायनात कैसे हो सकते हैं? जो मर गए, मिट गए, खत्म हो गए, जो किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते, बल्कि उनके लिए दुआ की जाए, उनकी मफरत के लिए दुआ की जाए, वो सरवरे कायनात नहीं हो सकता। बल्कि सरवरे कायनात वो है जो दूसरों के लिए कुछ कर सके। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा सोना यीशु, जिसने सारी दुनिया के गुनाहों को माफ किया है, वो ही सरवरे कायनात है, क्योंकि और कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता। और इसलिए कोई दूसरा अपने साथ ये लफ्ज भी नहीं लगा सकता कि सरवरे कायनात। हम उस यीशु का शुक्र करते हैं। जरा हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे, लाजर की किताब में से देखेंगे, यूहन्ना की इंजील, लाजर की कहानी देखते हैं। हमारी बहन ने निकाला हुआ है हवाला, जरा बहन हमारे साथ पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील और उसका 11 बाब। यहां साबित करके दिखा दिया कि वो सरवरे कायनात है, वो कायनात का मालिक है। क्योंकि जो कायनात का मालिक है, बादशाहत उसके हाथ में है, पताल उसके हाथ में है, आसमान और जमीन की कुंजियां उसके हाथ में है, बादशाही उसके पास है, क्योंकि वो कायनात का मालिक है, वो सरवरे कायनात है। बहन जरा आयत पढ़े, मैं थोड़ी सी इसके बारे में बता देना चाहता हूं। जरा पढ़ दे आयत 38 से 40 तक। यीशु फिर अपने दिल में निहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था
और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मार्था ने उससे कहा, ए खुदावन, उसमें से तो अब बदबू आती है, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। जी देखें, ये जब यीशु मसीह जमीन पर खिदमत कर रहे थे तो उनका एक बहुत ही अजीज दोस्त था और बहुत अजीज बहनें थी, 2, मार्था और मरियम, जिसे वो बहुत प्यार करता था। तो लाजर जो यीशु मसीह का दोस्त था, उसकी मौत हो गई और उसको मरे को करीबन 4 दिन हो गए थे। इसकी कोई वजह यह थी कि यीशु मसीह चौथे दिन ही क्यों गया था। हम वक्त के कम होने की वजह से ये नहीं बयान कर सकते, लेकिन इतना कहता हूं कि जैसा कि आज का ये हमारा मजमून है कि वो सरवरे कायनात है, यीशु मसीह कायनात का मालिक है। अगर हम इसी अंजील के अंदर देखें, उसकी चंद पहली आयत को देखें, 27 और 28 के अंदर वहां लिखा है, उसने मरियम को कहा कि क़यामत और जिंदगी, क़यामत और जिंदगी, किसने ये लफ्ज बोले थे? तो जो क़यामत का मालिक है, जिंदगी का मालिक है, किसका मालिक है जी? क़यामत और जिंदगी। क़यामत जिसके हाथ के अंदर है और जिंदगी भी जिसके हाथ के अंदर है, तो वो क्या है? सरवरे कायनात। क्या बहन? क्यों? जिंदगी किसके पास है? यीशु के पास। क़यामत कौन है? यीशु के पास। यहां ये साबित उसने करके दिखा दिया है कि मौत और जिंदगी मैं हूं, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। और फिर यहां उसने कहा क़यामत और जिंदगी भी मैं हूं। इसका मतलब है क़यामत वो है, जिंदगी वो है, आसमान और जमीन का खालिक और मालिक वो है। अब देखें आगे जाकर उसने क्या किया। अब देखें, वो 4 दिन का मरा हुआ मुर्दा, और उसने कहा कि मैं क्या करूं, मुझे उसकी कब्र पर लेके जाओ। और जैसे वो उसकी कब्र पर कहा, और उसने उसको क्या दी, आवाज दी, ऐ लाजर, ऐ लाजर, बाहर आ जा। मैं यहां यह बयान करना चाहता हूं, क्या कोई नबी, कोई देवता किसी की रूह को दोजख से या जन्नत से वापस बुला सकता है? किसी के अंदर कोई ताकत है? कोई इतना इख्तियारात रखता है इस दुनिया के अंदर? इसलिए अगर ये कोई इख्तियार नहीं रखता तो वो ये लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं कर सकता कि सरवरे कायनात है, क्योंकि ना तो आसमान पर, ना जमीन पर, ना बादशाहत पर कोई इख्तियार नहीं रखता, बल्कि यीशु मसीह। उसने कहा ऐ लाजर, ऐ लाजर, क्या आ जा, बाहर आ जा। आवाज देने से लाजर क्या हो गया? जिंदा हो गया। इसका मतलब क्या है कि वो सरवरे कायनात, वो कायनात का मालिक है। उसने मुर्दे को कहा, बुलाया 4 दिन का, ये नहीं इसलिए कि 1 दिन का, 2 दिन का। कह सकते हैं कि शायद हो सकता है वो बेहोश था और उसकी सांस थोड़ा बंद था, तो इसलिए कोई बहाना बना सकते हैं, लेकिन वो तो 4 दिन का। और उसकी बहन ने खुद कन्फेस कर दिया कि अब तो उसकी लाश से क्या आती होगी? बदबू आती होगी। अजीज बहन और भाइयों, हमारा खुदावंद जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसने ये बाइबल लिखी है, जिसकी ये बाइबल है, जिसकी हम प्रस्तुत करते हैं, वो सरवरे कायनात है, क्योंकि वो इस दुनिया का खालिक और मालिक है। वही अंधों की आंखें खोलता है और वही लंगड़ों को चलाता है। आज भी हजारों गवाहियां ऐसी हैं, बहुत सारी गवाहियां सुनने को मिलती हैं, रेडियो पर, टेलीविजनों पर लोग चला चला कर कहते हैं कि मुझे यीशु मसीह नजर आया, मैंने यीशु मसीह को देखा, उसने मेरी सारी बीमारियों से, उसने मेरे सारे गुनाहों से क्या कर दी, मुझे शिफा दे दी। गुनाहों से माफी और बीमारियों से शिफा सिर्फ एक ही दे सकता है, और वो है यीशु मसीह सरवरे कायनात। इस कायनात का वो मालिक है। और दूसरी बात यह है, आप जानते हैं कि यीशु मसीह को जब सलीब दी गई थी, सलीब पर था, तो आप जानते हैं कि उसके साथ 2 डाकू थे, एक दाएं और एक बाएं। उसने वहां एक लफ्ज बोला था, डाकू के एक लफ्ज बोला था कि तू आज ही मेरे साथ क्या होगा, क्या लफ्ज बोला था, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में। क्या दुनिया के अंदर कोई देवी देवता, कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई पीर या फकीर या कोई वली
कोई ऐसा लफ्ज बोल सकता है? क्या वो कह सकता है कि जिसको ये खुद नहीं मालूम कि मैं आज रात मर जाऊंगा या मैं दोजख में जाऊंगा या मैं जन्नत में जाऊंगा, उसको खुद ये पता नहीं है कि मैं कहां जाऊंगा, वो किसी दूसरे को भी ये कह नहीं सकता, क्योंकि वो सरवरे कायनात नहीं है। सरवरे कायनात कौन है? यीशु मसीह। इसीलिए उसने डाकू को क्या कहा था? आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, क्योंकि फिरदौस का मालिक यीशु है। इसका मतलब है आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसके पास है, और वही सरवरे कायनात है। इस कायनात का बनाने वाला खालिक व मालिक है। आज जो मेरे बहन भाई बात सुन रहे हैं, उनके लिए यही कहता हूं कि यीशु के पास आ जाए, वही आपके सारे गुनाहों को माफ करेगा और हमेशा हमेशा के लिए आसमान की बादशाहत अता करेगा। आमीन। जय मसीह।